Hello and good morning, my dear students. Before going to start the today's class, what something I want to discuss with you. The whatever the video I sent yesterday, those who are sin and try to answer, right? So I appreciate them, those who seen the video, and I also appreciate them who answered. And in that, what specifically I want to tell you is the average time duration in that video is 2.30, means 2.5 minutes. That is not the what you can say right thing. Those who are not seen that video completely, they just started the video and then exited, right? So please try to see the complete video, okay, and try to answer the questions. And those who seen the video completely, I think they answered perfectly, right? And I what you can say gracefully appreciate those who attempted the answers, because they may had seen the maximum of the video. And I what you can say request you to see the video completely. Definitely you are going to get some material that is useful very much for your future, okay? So now I will start the class. That the summary of the last class, what we started with, the scalar field and vector field, right? Their definitions and examples. Here scalar field is defined by like this, and example is here given. Two examples are there. And vector field is defined like this, and two examples are there, okay? Then after that we seen the concept of gradient of scalar field in Cartesian coordinate, and we return the expression, right? And that expression is this one for del operator, okay? Del operator is del I cap del by del x, j cap del by del y, plus k cap del by del z. This is the del operator, right? See, this del operator is operated on the a scalar function like this, right? A del operator is operated on the scalar function phi naam diya hai. Then that is called gradient of a scalar, right? And as I told you, the gradient of scalar is a vector. Then how you know? Because see here, just scalar is multiplied with the vector, then what do you get? Vector, right? So scalar is multiplied with the vector, what you are going to get? Vector. हमने पढ़ा है ना scalar product vector product से पहले, okay? So then now we are going to see the physical significance of gradient of a scalar function. See, this is the title: physical significance of gradient of scalar function, or grad phi, okay? So here this complete derivation is given, but we are not interested at all in that derivation because we haven't had it in our syllabus. So whatever the important things are there in this, that we are going to pick up, okay? See the diagram. I try to explain the diagram once again. See here, y, x and z axis are given, right? So हर बार हम इधर x लेते थे, पर यहाँ अलग लेके कोई बात नहीं. So y, first y, then x, then z. Three axes are given, okay? And particle is moving from point P to Q, and that P and Q are very very close to each other, okay? थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं जा रहे, ठीक है? वेरी क्लोज कैसे है? P और Q वेरी क्लोज है. Then if they are very close, then the coordinates of x P are like this: x, y and z.
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर वो बहुत क्लोज अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल डिफरेंस। ओके, देन the displacement vector between this P and Q is given by dr bar, that is dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। आपको याद है ना, dx n x2 minus x1 dy n y2 minus y1 हमने पढ़ा था, है ना, dz n z2 minus z1, राइट। सो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P और Q के बीच में, कौन सा, dr बार। देन ना अब ये इस चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब हम जाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देता हूँ। वो पी से क्यू जाते समय उसका एक्स कंपोनेंट मिलता है। सो पहले हमने क्या किया, वो एक्स के डायरेक्शन में कितना गया उसके लिए लिया, ठीक है। फिर उसका वाई कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, क्यू जाते समय, पी से क्यू जाते समय। फिर उसके बाद हमने वाई का लिया, फिर वाई से वो कहाँ जा रहा है, जेड पे जा रहा है, से बी से जेड पे, तो हम उसका जेड कंपोनेंट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली डेरिवेशन हमको नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बेटा, लाइक दिस, हाउ, लाइक दिस, एक बॉक्स दो बॉक्स, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हो, तो कहाँ पे, यहाँ पे हम यहाँ फिज़िकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, और ये है आपका फिज़िकल सिग्निफिकेंस जहाँ मैंने टिक किया है, ठीक है। तो देखेंगे हम, सी क्या है, व्हाट यू गॉट इज डी फाई बाय डी आर। क्या मिला हमें, डी फाई बाय डी आर। देखिए तो डी फाई बाय डी आर इज इक्वल टू डेल फाई डॉट आर कैप। ओके, ऐसे मिला हमें। अब हम देखते हैं पिछले कुछ स्टेप्स, यहाँ से समझो, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब अगर यहाँ पे आप देख पाते हो ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन से हम रिवर्स जाके ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डॉट है ना, यहाँ क्या है, डॉट है, डॉट, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कंपोनेंट का आई के साथ ही मल्टीप्लिकेशन, पहला वाला मिला, जे कंपोनेंट का जे के साथ ही मल्टीप्लिकेशन, और के साथ के वाले का ही मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार देखें तो क्या है बेटा यहाँ पे, फिर से एक बार, हाँ, डॉट प्रोडक्ट है, ये आई वाला, ये भी आई वाला, तो क्या है आई वाले, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स, है ना। तो ये दोनों एक जगह आ गए, जे के साथ जे वाला डॉट प्रोडक्ट में, तो फिर ये दोनों आ गए, के साथ के वाला एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों आ गए, राइट। सो हम इस पे से ये लिखे, पर वो वैलिड है क्या नहीं चेक किए, रिवर्स आ गया, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ फाई कॉमन है सब जगह पे, तो फाई हमने बाहर निकाला तो डेल फाई हो गया, ठीक है। और एज वी सीन ऑन द प्रीवियस पेज, क्या ये देखिए, ये क्या है, डी आर बार डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी है, राइट बेटा। सो तो हमें समझ क्या आ रहा है यहाँ पे, कि वो डी आर है और वो
डेल फाई है, तो यहाँ पे डेल फाई और डी आर का क्या चीज़, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आपको पता है कोई भी वेक्टर हो, आपको पता है कोई भी, जैसे कि ए बार है, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे, ए इंटू आर कैप, magnitude of vector A and a unit vector in the direction of A bar, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ लिखा गया है, ठीक है, डेल फाई डॉट डी आर इंटू आर कैप, देखिए तो डी आर मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बार और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट। ओके, तो ये जो डी आर है हम शिफ्ट करते हैं तो हमें नीचे वाला इक्वेशन मिलता है, दैट इज डी फाई बाई डी आर इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट आर कैप, राइट बेटा। सो देन आपको ये समझ रहा होगा क्या कि डेल फाई बाई डेल आर क्या है, स्केलर है। कैसे समझेगा, ये देखिए तो डेल फाई यानी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, ठीक है, वेक्टर का, यह आर कैप है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट क्या आपको और स्केलर, राइट बेटा। सो देन इस पे से हमें क्या समझेगा, तो यहाँ पे क्या समझ रहा है, हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है आपको कि डी फाई बाई डी आर इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी क्या, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको क्या समझ रहा है, क्या बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप इज अलोंग डेल फाई, that is the angle between del phi and r cap is 0, hence gradient, ये है आपका significance, gradient of a scalar field define a vector field the magnitude of which, इससे क्या समझ रहा है आपको, एक स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर फील्ड मिलता है या वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम चेंज ऑफ फंक्शन, स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन एज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डी आर बार बाई डी फाई, इस पे से हमें समझ रहा है, ठीक है बेटा। देन जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाता है कैसे, डेल फाई लिखा है तो डेल फाई कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जी कैप डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, तो ये जो ग्रेड फाई है वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, मतलब वो वेक्टर है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा जो पिछली क्लास में हमने लिया था कि स्केल से पोटेंशियल फील्ड इज अ स्केलर फील्ड, सो डेल फाई या माइनस है, ठीक है, माइनस ऑफ डेल वी इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कल ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, राइट। सो स्केलर फील्ड वी का ग्रेडियंट हम ले रहे हैं डेल वी, तो हमें वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, साइन नेगेटिव है वो बात अलग है, ई बार, ओके बेटा। सो आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड व्हाट
ग्रेडियंट ऑफ या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कि एक ग्रेडियंट अगर हम स्केलर फंक्शन का लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम चेंज इन द स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलता है। एक इम्पोर्टेंस हमें पता चला ग्रेडियंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है कि वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड किस में कन्वर्ट होता है, वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। Then now we are going to see the next, that is geometrical representation of gradient of phi। हम geometrically phi को और gradient of phi को represent करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखिए, इस पे से मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ठीक है। अगर del phi डॉट आर कैप है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज इक्वल टू 0 कब, ये डेल फाई और ये आर कैप के बीच में एंगल कितना 90 है, तब की बात, समझे। ओके, आर कैप और डेल फाई के बीच में एंगल कितना है 90 है, तब की बात। क्या मिलेगा हमें, ये डेल फाई बाय डेल आर डी फाई बाय डी आर इक्वल टू 0, ये है ना। सो डॉट प्रोडक्ट of two vectors, those vectors are perpendicular is 0। तो इस पे से हमें और क्या समझता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमें और एक फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता है, ठीक है। इन सच अ केस एज डी फाई इज इक्वल्स टू 0, फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूमरेटर 0 है, डी फाई इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या समझेगा फिर, फाई क्या है, कांस्टेंट है, राइट ना। हाँ, देन दिस डिफाइंस 3-dimensional surface and del phi a vector normal to the surface। मतलब क्या हुआ, और जब हम क्या फाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑप्टेन किए, ये फाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑप्टेन किए है, तो क्या समझता है हमें कि डेल फाई ये सरफेस को 3-dimensional सरफेस को कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया वही, राइट। सो अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई, है ना, ग्रेड फाई से जो मिला हमें वेक्टर वो, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर नहीं था तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो सी हियर, फाई स्केलर है, उसका हमने ग्रेडियंट लिया, डेल फाई हो गया, तो हमें एक वेक्टर मिला, ठीक है। रिजल्टेंट में क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर, ओके। सो देन वो जो वेक्टर मिल रहा है, जो वेक्टर का नाम है डेल फाई, तो ये किसको, ये सरफेस फाई को क्या है, नॉर्मल है, वो नॉर्मल के अलोंग का यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देन दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। सो हियर इट इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। सो अदर वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे, the gradient of scalar function at any point is directed normally to the
surface in the scalar field over which the scalar function is constant. Then a scalar function, see scalar function is surface के along, ये surface है phi, ठीक है, surface है मतलब ये surface के along वो constant है. तो gradient अगर हम लेते हैं, so gradient of a scalar function देखिए at any point is directed normal, directed how normal, ठीक है. ये समझो फाई है, हाँ ठीक है. डेल फाई क्या है, ये है. दिस इज यू आर गोइंग टू गेट डेल फाई. फिर से एक बार सी, अगर ये फाई है तो डेल फाई हम अगर लेते हैं इसका तो ये डेल फाई होगा, मतलब वो सरफेस को वो पॉइंट पे वो नॉर्मल होगा, राइट. तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली टिल द एंड. बाय बाय फॉर नाउ.